अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इंचार्ज तेलंगाना गवर्नर की हैसियत से CP राधाकृष्णन ने हलफ ले लिया। वज़ीर आला और रियासती वज़रा की शिरकत। गैर मौसमी बारिश से काश्त को हुए नुकसानात की हुकूमत पाबजाई करे। साबिक़ वज़ीर ज़राअत G. निरंजन रेड्डी का मुतालबा। साबिक़ रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने फिर से BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्लिमानी इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिशमंद। नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए इंसुलिन इंजेक्शन भारी मकदार में ज़ब्त। महकमे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। इंचार्ज तेलंगाना गवर्नर के ओहदे की हैसियत से 4 जनवरी के रोज़ CP राधाकृष्णन ने राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में अंग्रेज़ी ज़बान में हल्फ लिया। उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने हलफ दिलवाया और मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोंडा सुरेखा, पूनम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी, T. नागेश्वर राव और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा DGP और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। Now I request the Honorable Chief Justice of High Court for the State of Telangana to administer the oath of office to the Honorable Governor. I, Chandravaram Ponusami Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Telangana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Telangana. I request the Honorable Chief Justice of High Court for the State of Telangana to hand over the warrant of appointment to the Honorable Governor. Thank you. You are betterment of friends. With the permission of the Honorable Chief Justice, I conclude the swearing-in ceremony. साबिक़ वज़ीर ज़राअत और BRS क़ायद G. निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से रियासत के कई अज़ला के किसानों की काश्त को जो नुकसान पहुँचा है उसकी पाबजाई के लिए किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये देने के इक़दाम करें। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐन पार्लिमानी इंतखाबात से पहले मेगा DSC के इनेकाद के ऐलान को सियासी ड्रामाबाजी करार देते हुए कहा कि हुकूमत के ऐलान के फौरी बाद मुल्क और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఉండేటువంటి నామ్స్ పాటిస్తే ఎకరాకు 2,500, 3,000, 3,700 కంటే ఎక్కువ రాదు ఏ పంట అయినా. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో అమల్లో ఉండేటువంటి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రకృతి విపత్తుల చట్ట పరిధిలో ఇవ్వదలుచుకుంటే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా ఆయా పంటల బట్టి 2,500 నుంచి 3,700 కంటే ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం లేదు. కానీ మేము ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు రైతు పక్షపాతి కాబట్టి ప్రభుత్వంలో వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంటాం,
రైతులకు మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? మన ప్రయారిటీ రైతు ప్రయారిటీ ప్రభుత్వం కాబట్టి ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు ఇద్దామని చెప్పి ధైర్యంగా ఆనాడు డెసిషన్ తీసుకొని జీవో విడుదల చేసినాం. 13th మార్చికు జీవో ఇష్యూ చేసినాం. సేమ్ డే 1300 పైచీలు కోట్లను మంజూరు చేసినాం. ఆ తర్వాత మిగతా డబ్బులు కూడా పంటల్ని అన్నిటిని కూడా ఎనుమరేట్ చేసుకొని రైతాంగానికి ముట్టించినాం. ఆయన ఏం మాట్లాడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ? ఆయన ఏం మాట్లాడింది ఆ రోజు పిసిసి ప్రెసిడెంట్? ఇప్పుడున్న నాయకులంతా ఏం మాట్లాడిండ్రు? 10,000 ఏంటికి సరిపోతుంది? ఎకరాకు ఏంటికి సరిపోతుంది? 10,000 బిచ్చమిస్తున్నారా అని మాట్లాడిండు. మేము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం? మిమ్మల్ని రాజకీయం విమర్శిస్తలేం. మేము జిమ్మేదారు తెలిసిన వాళ్ళం. ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుందో పై దగ్గర పెట్టుకొని ఆలోచించి పనిచేసిన వాళ్ళం. ఏదైనా మాట్లాడితే బాధ్యత ఉండాలి. అందుకే మేము 10,000కు జీవో ఇచ్చిన వల్ల మీరు కూడా ఇదే 10,000 రూపాయలు ఎకరాకి ఇమ్మని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఎకరాకు నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు, పంట వడగళ్ల వానతో నష్టపోయిన ప్రతి రైతుకు 10,000 ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా మీ చర్యల వల్ల, మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల, మీ పట్టింపు లేని కారణంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎండిపోయినటువంటి పంటలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో మొత్తం ఎన్యూమరేట్ చేయండి. వాళ్ళకు కూడా ఇదే बीआरएस को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के बाद एक झटके लग रहे हैं और इस सिलसिले में 4 शंबे के रोज़ बीआरएस को उस वक्त सियासी झटका लगा जब ज़िले गजवेल के सदर नशीन BS केशव और 15 काउंसलर्स ने रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने सदर नशीन और 15 काउंसलर्स का पार्टी में खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया और बताया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को रूबे अमल ला रही है। रियासती वजीर कोमट वेंकट रेड्डी ने नलगुंडे के कई मंडल्स में गैर मौसमी बारिश से किसानों को होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेते हुए किसानों से इज़हार हमदर्दी की और फौरी तौर पर कई एक राइस मिलर्स के ज़िम्मेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए हिदायत दी कि किसानों से धान की खरीदी फ़ी कुंटल 3,000 रुपये की जाए। कोमट वेंकट रेड्डी ने बताया कि किसानों के नुकसानात से मुताल्लिक़ वन खरीद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी तबादले ख्याल करेंगे। मुल्क और रियासत में जैसे ही पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ है उसी दिन से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो गया, जिसकी वजह से तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से शुरू किए गए प्रजावानी प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। कांग्रेस इक़्तिदार पर आने के बाद सेक्रेटेरिएट के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीरा मौजूद तो रहेंगे लेकिन आवाम से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि वज़ीरा और हुकूमत कोई नए अहकामात जारी नहीं कर सकते। तेलंगाना की साबिक गवर्नर और पाडुचेरी की साबिक LG तमिलासाई सुंदरराजन ने फिर से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तमिलनाडु बीजेपी के सदर अन्नामलाई और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सुंदरराजन ने कहा कि आज वो इंतहाई मसरत से सरशार हैं और वो नहीं समझती कि वो एक बड़े दस्तूरी ओहदे को उन्होंने तर्क किया है। वो आवाम से रास्ता राब्ता रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने
ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। ये पूछे जाने पर कि वो किस निशित से मुकाबला करेंगी तो उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान इसका फ़ैसला करेगी। उन्होंने कहा कि जब वो गवर्नर के ओहदे पर थी उस वक्त भी उन्होंने दस्तूर की पाबंदी की थी और अभी भी वो दस्तूरी क़वायद की पासदारी करेंगी। I am in my happiest mood now. I don't think that I have left a very luxurious life and a constitutional post, because I love people, serving the people, and I admire our Honorable Prime Minister, the way he get connected with the people. So we also wanted to get connected with the people, want to do service directly to the people. I'm not saying that governorship, they are not doing service to the people. It is also a doing service to the people, but direct contact with the people, direct as a karyakarta, and expressing my political views and taking forward the political challenges I was unable to do. So now I am able to do. But when I was the governor, I was sticking to the constitution. I was not violating anything. Yeah, I am very thankful to our Honorable Prime Minister and President and Home Minister for giving me an opportunity to perform in 2 states. And I have moved with 4 chief ministers, and I have seen 2 elections, have the experience of seeing 2 elections during my tenure, and totally 3 months governor's rule in Puducherry. So total administration was with me, that too during a challenging period of Corona second phase. So how I managed. रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही कई हल्कों में इफ्तार पार्टियों का भी जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया जा रहा है। मजलिस क़ायदीन मुसलसल मज़कूरा इफ्तार पार्टियों में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत क़ायद मुखन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। 9 रमज़ान मुबारक को भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस क़ायदीन की जानिब से मुनक़्क़िद की गई दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ऊपर देख के ये दो आप भाई खजूर दो इधर खजूर दो आ जाओ सलेमान हो गया भाई लियो भाई परवेश मुझे ऊपर जाओ वहाँ पे यार बेचारे खड़े ही रहो जो लो सीनिंगा हेलो हेलो मुझे ऊपर जाओ लो बस फोटो आना नहीं हल्के असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सीवरेज लाइन और वाटर लाइन के कामों का जायज़ा लेते हुए अवामी तकालीफ के पेश नज़र अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, साले नगर, कंचा व दीगर इलाक़े जात का पैदल दौरा किया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। ఏం లేకుండా బతాయి మనం వచ్చే గల్లీకి కుప్పేట ఎప్పుడు గల్లీ మొత్తం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎట్లా ఏం లేకుండా దిగాలి మొత్తం ఇక్కడ కలపాలి మనం అనుకున్న కూలర్ దగ్గర నుంచి లెవెల్ మీట్ అయితే ఇలా ఈ సైడ్కి వెళ్ళి తీసుకోపో ఇది ఉండని ఇది డిస్టర్బ్ చేయాలి పక్కకి తీసుకోవాలి సరేలే వాటర్ అది ఓపెన్ చేయించారు ఎక్సర్సైజ్
అక్కడ క్యాష్ పెట్లు రోడ్డు డ్యామేజ్ ఉంది ఇప్పుడు. ఏది వస్తుంది రివర్స్? और मस्जिद मुकरम का नीचे एक्सटेंशन है और यहाँ पे काफ़ी मेनोना डैमेज है. ज़रा तुम आ गए तो यहाँ उन्हें बता देते पूरा आपको. बीआरएस पार्टी के लीडर विनोद कुमार ने रियासती वजीर टी नागेश्वर राव से फ़ोन पर बात करते हुए गैर मौसमी बारिश से फौत होने वाले अफराद के वर्षा को फ़ीकस 10 लाख रुपये गुज़रिशा देने का मुतालबा किया है। विनोद कुमार ने रियासती वजीर से दरख्वास्त की कि गैर मौसमी बारिश से किसानों को जो नुकसान हुआ है उनकी इमदाद की जाए। ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను ఈ మన ముస్తాబాద్ మండలము తర్వాత తంగలపల్లి మండలము ఈ రెండు మండలాలకి అకాల వర్షాలు వచ్చినట్టే వచ్చింది సార్. మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే ఒక దగ్గర ఏమైందంటే ఒక మన ఆర్టీసీ డిపోలో ఒక చెట్టు ఉండే, ఇవన్నీ మనం రోడ్ల మీద ఈ చెట్టు పెట్టాం కదా, గుల్మోవర్ చెట్టు, అది పెద్ద చెట్టు, అది కింద పడి ఆ వైర్ల మీద పడి పూలు తిరిగేసరికి పాపం అక్కడ ఒక యాదవ్ కుటుంబం చెందిన వ్యక్తి చనిపోయాడు. మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్. సరే అదొక చేసిన తర్వాత కొన్ని దిక్కుల ఈ మన ఎక్కువ ఏళ్ళు కొన్ని డ్యామేజ్ కాలేదు, కానీ సీరియల్గా మనకు న్యాచురల్గా ఎవరి ఇయర్ మనకు వస్తాయి కదా ఈ వడగండ వానలు, దానివల్ల ఇదే డ్యామేజ్. नाचरम के रहने वाले 25 साल नौजवान अमेरिका के क्लीवलैंड में लापता हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल मोहम्मद ने मई 2023 में आईटी मास्टर्स के लिए क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। 7 मार्च से वो अपने ख़ानदान से राब्ते में नहीं है। इस दौरान अब्दुल के वालिद मोहम्मद सलीम को नामालूम शख्स का फ़ोन आया और उसने दावा किया कि उनके बेटे को ड्रग्स के कारोबार करने वालों ने अगवा कर लिया है और अब्दुल की रिहाई के लिए $1200 का मुतालबा किया गया है। फ़ोन करने वाले ने धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अब्दुल के गुर्दे को फ़रोख्त कर दिया जाएगा। अमेरिका मुक़ीम अब्दुल के रिश्तेदारों ने न्यूजीलैंड पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा से भी मदद की अपील की गई है। सैफराबाद पुलिस ने राजेंद्र नगर में एक्साइज से ग़िज़ाई अशिया की बड़ी मकदार को ज़ब्त किया है। बताया गया है कि हैदराबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर एक्साइज से ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त की जा रही है। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। तेलंगाना के भोपालापल्ली में एडिशनल कलेक्टर के घर में सड़की की वारदात अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि एडिशनल कलेक्टर नोती मधुसूदन के मकान में सारिक दाखिल हुए और वो अपने चेहरे को ढांके हुए थे। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और केस दर्ज किया गया, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। मसरूक़ा अशिया के बारे में भी इत्तला नहीं दी गई है। महबूबनगर ज़िले के पुनाकल देहात में 20 आवारा कुत्तों को गोली मारने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पालतू कुत्ते को मारने पर 57 साल किसान मन्ना नरसिम्हा रेड्डी ने
42 साल हैदराबाद के शूटर तारिक अहमद और जिम मालिक मोहम्मद ताहिर की मदद से आवारा कुत्तों को मारने लगाया। तारिक के पास लाइसेंस वाली राइफल बताई गई है। बताया गया है कि फरवरी नरसिम्हा रेड्डी के पालतू कुत्ते मंटू और जाड़े पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था। उसी की इंतकामी कार्रवाई के तौर पर आवारा कुत्तों को गोली मारी गई। फोटो తీసుకోండి टोटल 4 पर्सन सर 4 ఆయన మన కానిస్టేబుల్ तेलंगाना के महकमे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली से नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए इंसुलिन इंजेक्शन की भारी मकदार को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में 6 होलसेल डीलर्स की दुकानों पर ये धावे किए गए हैं। इतला मिली है कि दिल्ली से इंजेक्शन्स 40% डिस्काउंट पर हासिल किए गए थे। जब्त किए गए इंजेक्शन्स की कीमत 51,92,000 रुपये बताई गई है। इंजेक्शन्स पर MRP 5,263 दर्ज था और इसे 2,070 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। इंजेक्शन को लेकर शुबहात भी पाए गए हैं। पद्माराव नगर सिकंदराबाद की MS ड्रग हब से 6,70,000, रामंतापुर की तिरुमला फार्मा से 3,52,000, सुल्तान बाज़ार की पारस मेडिकल एजेंसी से 9 लाख और नागुल की गणेश फार्मा से 14 लाख, मेरचल की राजा राजेश्वर से 2.70 लाख और काचीगुड़ी की बालाजी एजेंसी से 16 लाख रुपए के इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। नाज़रीन, रियासत और दोनों शहरों में पेश आए जराइम और हादसात की खबरों पर भी एक तफसीली नज़र डालेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मसनवी तरीक़ेकार पर पकाए जाने वाले आम को बड़ी मकदार में जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक महकमे GHMC के फूड सेफ्टी ओहदेदार और मुतालिका पुलिस ने शहर में वाक़ मुख्तलिफ फलों के गोदाम पर छापे मारे और बड़ी मकदार में कार्बाइड और एथिलीन को जब्त किया, जो आम पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। కూడా వాడొచ్చు, సిలిండర్స్ ఎప్పుడు వాడొచ్చు అంటే క్లోజ్డ్ అయిపోయిన చాంబర్స్. సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి మీడియం సైజ్ ట్రేడర్స్ ఆర్ స్మాల్ సైజ్ ట్రేడర్స్ ఉంటారు. సో బిగ్ సైజ్ ట్రేడర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ కి పంపించే వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇది రైపనింగ్ చాంబర్స్ అవి యూజ్ చేసేసి గ్యాస్ దాంట్లో ఎస్టిలింగ్ बस्टेड एक ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें क्या करते हैं लोग, इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं घर में, इंटरनेट कनेक्शन लेके ये जो सारा इक्विपमेंट यहाँ पे जो बताया आपको, ये इक्विपमेंट के थ्रू इंटरनेट कॉल को रूट करके उसमें सिम्स भी लगाते, ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम्स लगाते, उसमें 64 कैपेसिटी रहता, किसी का 124 भी रहता। वैसे सिम्स लगा के वो सिम्स के जरिए वो कॉल को, इंटरनेशनल कॉल को इंडियन कॉल जैसा आइडेंटिटी बताते, जो रिसीवर को इंडियन कॉलर जैसा करते। ये करने में
वो लोग जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को ये इंस्ट्रूमेंट्स जो इलीगली ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर करके कहीं दूर जगह में लगा के उसको और एक अपार्टमेंट जैसा कोई कोने में रह सका कोई भी किसी को शक नहीं आया जैसा एक घर में लगा के वो घर को लॉक करके इंटरनेट कनेक्शन लेके इक्विपमेंट करके महीनों भर वो लोग उधर नहीं जाते, वो घर को भी नहीं जाते। तो वैसा ये सेंटर्स इलीगल चलाते हुए ये लोग अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंच रहे, करोड़ों में रुपयों का नुकसान हो रहे। और वैसे ये लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इसके जरिए उनका कम्युनिकेशन इधर कर सकते हैं। और वैसे कोई अपना प्राइवेसी को भी मार खाते हुए वो लोग क्या करते हैं, अपना कॉल को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये अपना नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत नुकसानमंदी है। तो और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमारा साउथ जोन टीम और अपना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑफिशियल्स और संतोष नगर वाला ज्वाइंट रेड करके ऐसे 3 जगह हम लोग इसको अरेस्ट करें। वो उसमें से दो लोगों को अरेस्ट करें, एक हिदायत अली एक मुजाहिद अहमद बोल के, ये दोनों को अरेस्ट करें और फर्दर प्रोब ये लोग कैसा करें इसके पीछे और कोई है। अलाहाबादी एक और केस में साउथ जोन टीम ने टेलीफोन डिपार्टमेंट के ओहदेदारों और संतोष नगर पुलिस की इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से चलाए जाने वाले कॉल रूटिंग टोली का पर्दाफाश किया और 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुलजमीन हिदायत अली और मुजाहिद अहमद को गिरफ्तार किया है। From any country, foreign subscriber, I mean, it is making a call. The call will come to their international gateway. From there, it is routed to international ILD carrier and gateways. Any ISP call is supposed to come via this route. And from international gateway, it will be routed to our subscribers. Some landline subscriber కావచ్చండి, మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ కావచ్చు, ఇలా రూట్ అవుతుంది అనమాట మనకు వచ్చే కాల్. ఇప్పుడు जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। जुबली हिल्स चेक पोस्ट से फिल्मनगर आने वाली ये कार तेज रफ्तारी के सबब बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के दौरान कार का अगला टायर फट गया था। తీసుకున్న నెంబర్ కవర్ అయ్యేటట్టు माधवपुर डीसीपी विनीत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंशियात के केस में मुलविस अब्दुल रहमान नामी एक मुलजिम को रेडिसन होटल से गिरफ्तार किया गया है, जबकि साथ ही दिल्ली से नरेंद्र नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा मुलजिमीन मंशियात की स्मगलिंग और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस थे। उनके कब्जे से 11 ग्राम MDMA और एक जैगवार कार को भी जब्त किया गया। SOT టీమ్ అండ్ గచ్చిబౌలి మన మాదాపూర్ జోన్లో ఉన్న గచ్చిబౌలి PS టీము వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇంతకుముందు మనకు కావాల్సిన సయ్యద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అని ఎవరు ఉన్నారో ఈజ్ ఏ డ్రగ్ పెడ్లర్, అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది.
అతనితో పాటు అతని సహచరుడు మిలాన్ నరేందర్ వనత్ నరేంద్రాసి వనత్ అని ఇతను ఈజ్ ఎ రెసిడెంట్ ఆఫ్ న్యూఢిల్లీ. సో ఇతను కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మనం 11 grams ఆఫ్ MDMA, మొబైల్ ఫోన్స్ 7 అండ్ 1 జాగ్వార్ కార్ దీన్ని స్వాధీనం తీసుకున్నాం. అండ్ వీళ్ళ మీదే ఈ సయ్యద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ అని ఎవరున్నారు అతని మీదే ఇప్పటి వరకు 6 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో గచ్చిబౌలిలో 2 కేసులు, అలాగే మలక్పేట్, చాదర్ఘాట్, జగదాద్రి గుట్ట అండ్ దబీర్పుర PS ఈ లిమిట్స్లో ఒకటొకటి కేసు నమోదైనాయి. వీళ్ళదొకటి ఎక్స్టెన్సివ్ నెట్వర్క్, దాదాపు ఒక 10 to 15 మెంబర్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళని పెట్టుకొని న్యూఢిల్లీ నుంచి ఈ డ్రగ్స్ని ఇక్కడి వరకు తీసుకువచ్చి దాన్ని ఇక్కడ అమ్మడం మొదలుపెట్టారు. దీంతోపాటు వచ్చిన ఈ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఆర్ ఆదాయం ఏముంది దాన్ని వాళ్ళు ఫ్యాన్సీ కార్స్లు అలాగే మొబైల్ ఫోన్స్ దీనికి వాడారు. అలాగే వీళ్ళు ఈ పబ్ గోవర్స్ ఎవరు ఉంటారో యంగ్ యూత్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం, ఈ నెట్వర్క్ అంతా కూడా आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंचार्ज तेलंगाना गवर्नर की हैसियत से CP राधाकृष्णन ने हलफ ले लिया। वज़ीर आला और रियासती वज़रा की शिरकत। गैर मौसमी बारिश से काश्त को हुए नुकसानात की हुकूमत पाबजाई करे, साबिक़ वज़ीर ज़राअत G निरंजन रेड्डी का मुतालबा। साबिक़ रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने फिर से BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली, पार्लिमानी इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिशमंद। नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए इंसुलिन इंजेक्शन भारी मकदार में ज़ब्त, महकमे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ के इख्तिताम पर ज़रूरत है रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।